Good morning, everybody. Welcome back to the class. Today we will be discussing our very next topic, and it is tenses. Okay, so we'll be discussing the tenses one by one. As we know, tenses are further classified into three types, and they are also further classified into four types each. So the first one is present tense. Second one is past tense. And the very third one is future tense. Past, present, and future. Okay, I hope this is clear. There are three types of tenses and they're also further classified. So we'll be discussing them one by one. Today we will be covering our present tense, tomorrow past, and in the coming class future. Okay, so let's start with present tense. Let's see first of all what's the definition of tense. So as we know, the tense is what? It's a grammatical term which serves at what? It serves as a marker and indicator of the form of verb. कि जो भी verb है, जो भी काम हो रहा है, whether something is happening, something happened, और something will happen, तो बताएगा कि वो जो form of verb है ना, उसका indicator है, वो बताता है कि वो किस तरह का form of verb है. Whether वो past की बात कर रहा है कि कोई चीज हो चुकी है, या होगी, होने वाली है, या फिर हो रही है, तो क्या बताएगा tense? It will act as a marker and indicator for the form of वर्ब, किस तरह की फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, बताएगा वो क्या, टेंस इंडिकेट करेगा. नेक्स्ट, let's move forward toward our first tense. You can write over here. They're further classified into three types. We have three types, and in three types, as I've told you, write down past, present, and future. These are the three types: past, present, and future. आई होप इट्स क्लियर कि तीन टाइप के टेंसेस हैं हमारे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. ठीक है, क्या मार्क करता है वो? फॉर्म ऑफ वर्ब इंडिकेट करता है. Okay, let's move forward to our very first tense, that is present tense. So what is present tense? क्या है? एक grammatical tense है whose principal function is to locate a situation or event in which time, in the present time. एक grammatical tense है जिसका function क्या है कि वो locate करे किसी situation को या फिर किसी event को present time में, कि भी present time में कौन सा event हो रहा है या present time में क्या situation है, वो explain करने के लिए हम जो use करते हैं, that is present tense. Present tense is used for actions which are happening now. अभी जो actions हो रहे हैं, आज की डेट में जो actions हो रहे हैं, ठीक है, आज जो actions हो रहे हैं. Actions which are happening today, what हम उनको किसमें लिखते हैं? Present tense हम use करते हैं उसमें, ठीक है, used for actions. प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? हमें बताना किसी भी सिचुएशन में या फिर इवेंट को किसके रिस्पेक्ट में, प्रेजेंट टाइम में. अब देखो कितने टाइप्स की प्रेजेंट टेंस है. अब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, हमने इसके बारे में पढ़ा कि वो आज के पर्टिकुलर रेफरेंस में हमें बताती है क्या, कौन सा इवेंट है, क्या सिचुएशन इंडिकेट करती है. अब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. अभी हमने पढ़ा था टेंसेस. टी स्टैंड्स फॉर टेंसेस, further classified into 3: past, present, and future. This is present tense, this is past tense, and this is future tense. So this present tense is further classified into 4. The very first one is simple present. Next is present progressive. Many of you have read it by the name of present continuous tense. Most of the times हम इसको present continuous tense की form में ही पढ़ते हैं, पर यहाँ पे I have written it present progressive because the another name of present continuous is present progressive. Next is present perfect tense, and the last one is present perfect progressive. Last one हमारे पास क्या है? It is present perfect progressive. Okay, I hope it is clear. पहला क्या है हमारे पास? Simple present.
दूसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं कि टेंसेस कैसे हैं, लाइक किस टेंस के अंदर क्या है एंड देन उनके यूजेस क्या है। ओके, वेरी फर्स्ट इज आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस। Just a second, let me just switch from this one to another good one. Yeah, I hope it's quite clear. Yeah, so सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ यूज, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ रूल्स है। अभी हर टेंस में ना कुछ रूल्स पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है कि अगर हमें कोई सिंपल प्रेजेंट में स्टेटमेंट दिया है या फिर हमें कन्वर्ट करना है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें कौन सा रूल लगाएंगे। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना हमारी, हम इसमें देखते हैं। देखो, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एन ऑर्डिनरी वर्ब इज बेयर इन्फिनिटिव। अब बेयर इन्फिनिटिव कौन से होते हैं, जिनके साथ में ना हम वो इन्फिनिटिव वर्ड्स जिनके आगे हम टू नहीं लगाते हैं, हम वहां पे क्या लगाते हैं, विद और विदाउट एन एस। अभी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म किसी भी ऑर्डिनरी वर्ब का, जैसे कि जहां पे भी हम टू लगा देते हैं, मतलब जो इन्फिनिटिव वर्ड्स होते हैं ना, वी ऐड टू बिफोर देम, ठीक है, टू गो देयर, टू बी विद हिम, तो ऑल दीज आर व्हाट, दे आर सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में होंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में वो इन्फिनिटिव फॉर्म में होंगे। जो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है उसमें क्या होगा, जो ऑर्डिनरी वर्ब होगा ना वो इज पेयर इन्फिनिटिव, उसके आगे हम टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी देखो, सिंपल प्रेजेंट ऑफ हैव प्लस नाउन। अब देखो, जब भी किसी स्टेटमेंट में क्या होगा, हमारे पास हैव और उसके आगे नाउन लगा होगा, ठीक है, उसमें उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका सिंपल प्रेजेंट कैसे बनेगा, इट इज हैज ऑब्लिक हैव प्लस नाउन, हैज ऑब्लिक हैव प्लस नाउन। ये हमको याद रखने, दीज आर समथिंग्स व्हिच वी हैव। कोई स्टेटमेंट आपको ऐसे दे देंगे कि इसमें हैव और नाउन लगा देंगे, नाउ यू हैव टू चेक कि उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, या तो वो स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा या फिर उसको फिर से हमें कन्वर्ट करके उसमें हैज हैव प्लस नाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट ऑफ बी। जहां पे भी बी आएगा, आई हैव टू बी, ठीक है, जहां पे भी बी वर्ड आएगा, लाइकली टू बी, तो वो जो बी वर्ड आएगा उसके साथ में क्या लगाएंगे, उसके साथ में हम लगाएंगे या तो इज, एम और आर, या तो इज एम आर लगाएंगे हम उसके साथ में। इन तीनों में से कोई भी एक चीज लगेगा, तो एम लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव, जो भी दिया हुआ है, तो नाउन या फिर एडजेक्टिव, उसके साथ में हम ये लगाएंगे। तो दीज आर द थ्री रूल्स। पहला क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब है, उसके साथ में हम विद और विदाउट एन एस, हम उसको एस लगाएंगे वहां पे। एक और चीज, जैसे कि स्लीप है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में इट विल टर्न इनटू स्लीप्स। जैसे कि हैपन देखा था हमने व्हेन वी आर सॉल्विंग द पेपर, उसमें हमने क्या हैपन देखा था, इट विल बी स्लीप्स। अभी सिंपल प्रेजेंट ऑफ हैव प्लस नाउन का क्या होगा, हैज हैव प्लस नाउन। सिंपल प्रेजेंट ऑफ बी का क्या होगा, इज एम आर प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस थिंग्स लाइक फॉलोइंग। अब कैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देखो यहाँ पे दिया है, जब की बात हो रही हो, इटर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से होते हैं, इटर्नल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ आर दोज जो कि विच कैन नॉट बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ईस्ट में ही राइज होता है, उसमें देयर इज नथिंग एल्स कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप सन की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हो, इट इज इटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थ मूव राउंड द सन। अब अर्थ किसके अराउंड घूमता है, इट मूव्स अराउंड द सन। सन स्टेशनरी, उसके आगे अराउंड सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, दे रिवॉल्व। तो इसमें हमारा क्या हुआ, ये क्या है, ये है इटर्नल ट्रूथ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल प्रेजेंट हम कहाँ यूज करते हैं, वी यूज देम जहां पे भी हम इटर्नल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जो हम यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट इज सेकेंड इज, देखो जहां पे थ्योरीज या फिर प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि जो भी थ्योरी, किसी भी साइंटिफिक थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी
प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, वो किसी भी उसका हो सकता है, किसी भी डोमेन का हो सकता है, ठीक है, वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, वहां पे भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हमारा लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। अभी आई विल टेल यू कि हमने कहाँ पे यूज किया, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। तो यहाँ पे ट्रैवल से क्या हो गया, ट्रैवल गॉट कन्वर्टेड इनटू ट्रैवल्स। सो दिस ट्रैवल्स जहां पे हमने एस लगाया है, दिस इज आर conversion into what? This is our conversion into simple present tense. या तो हम क्या ऐड करेंगे, बेसिक हम ऐड करेंगे तो s, या फिर हम उसके साथ में क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे अगर नाउन है तो उसमें has, have plus, या फिर प्लस नाउन। अब देखो नेक्स्ट है, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर कहाँ पे फ्रीज करता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे फ्रीजेस क्या है, फ्रीजेस हमारा क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो टेंस यूज हुआ है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट देखो, ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। कितनी साइड्स हैं उस ट्राइंगल की, दिस इज अ ट्राइंगल, इट हैज हाउ मेनी साइड्स, इट हैज 3 साइड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या है, अब इसमें हमने कुछ वो यूज नहीं किया है, ठीक है, इसमें हमने क्या यूज किया है, इसमें हमने अपना रूल नंबर 2 यूज किया है, हैज, हैव प्लस नाउन। नाउन क्या है हमारा, ट्राइंगल, उसकी कितनी है, 3 साइड है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, हैज, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या बनाया, ऐसे हमने अपने सिंपल प्रेजेंट में यूज किया। कहाँ कहाँ यूज किया, पहले हमने इसको यूज किया अपने यूनिवर्सल ट्रूथ में या फिर इटर्नल ट्रूथ में, जो चीजें कभी भी चेंज नहीं हो सकती हैं, जो इटर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं वो। उसके बाद में नेक्स्ट हमने यूज किया थ्योरीज और प्रिंसिपल्स में। किसी भी डोमेन की, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी थ्योरी है या फिर कोई भी प्रिंसिपल है, वेदर वो साइंटिफिक है, वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ऑल दीज आर व्हाट, वो सब हम किस में काउंट करेंगे, वी विल काउंट इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब और कहाँ यूज हो सकता है इसका, थर्ड इज प्रोवर्ब ऑब्लिक सेइंग्स। अभी प्रोवर्ब्स और सेइंग्स में भी यूज कर सकते हैं, जो भी प्रोवर्ब्स होते हैं या फिर जो सेइंग्स होती हैं। इसे हम यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है मैंने, बैड कारपेंटर, वेयर इज इट, या अ बैड कारपेंटर quarrels with his tool। अब ये एक सेइंग है, जो बुरा कारपेंटर है ना वो अपने टूल्स के साथ झगड़ा करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इट इज अ सेइंग, व्हाट इट इज सिग्निफाइंग, कि बता रहा है कि अगर आप बुरे कारपेंटर हो अपने टूल्स के साथ झगड़ा करोगे, ठीक है। इट इज अ सेइंग फॉर किसी भी एग्जाम्पल को देने के लिए ना, जैसे कोई आदमी किसी चीज के लिए एग्री नहीं करता है, जो कि उसके लिए अगर हम पढ़ते नहीं है तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं कि हाँ, it's just like a bad carpenter who quarrels with his tool। मतलब you have the tools but you don't live in peace with it। Okay, next is one swallow does not make a summer। एक swallow it does not make a summer। all these are what, all these are our simple present। यहाँ पे भी हम हमने simple present को यूज किया है, यहाँ पे देखो quarrels आ गया। अब next देखो 4th पॉइंट में हमारा दिया है नेचुरल और इनहेरेंट क्वालिटीज ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक। या तो नेचुरल क्वालिटीज या फिर इनहेरेंट, जो हमारे अंदर पहले से ही है, ठीक है, विच इज इनहेरेंट इन अस, ठीक है, हमारे अंदर है जो चीज, वो क्वालिटीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन, ठीक है, लव्स हर चिल्ड्रन, लव से हमें पता चला कि इट इज व्हाट, दिस इज आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस इज आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस। Okay, pardon, this is S। Okay, so this is our simple present tense। तो love से पता चला। अभी नेचुरल क्वालिटीज क्या होते हैं, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे पास, कि जो मदर है ना, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट मदर विल लव हर चिल्ड्रन, ठीक है। तो मदर लव्स हर चिल्ड्रन, तो ये क्या है, इट इज ट्रू कि मदर लव्स हर चिल्ड्रन, इट्स अ नेचुरल क्वालिटी। नेक्स्ट इज सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। तो सन हमें क्या देता है, सन गिव्स अस लाइट एज वेल एज हीट। तो सन की नेचुरल क्वालिटी है वो, कि वो लाइट देना या फिर हीट प्रोवाइड करना, वो उसकी नेचुरल इनहेरेंट क्वालिटी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो यहाँ पे गिव्स है हमारे पास, गिव से गिव्स में कन्वर्ट किया हमने से, एस आ गया, तो एस इज व्हाट, यहाँ पे हमारा ये एस है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज शोइंग दैट दिस टेंस इज यूज्ड एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो शुगर इज स्वीट, शुगर कैसी है हमारी, शुगर इज स्वीट। क्या मैंने आपको बोला था इज एम आर का यूज करेंगे हम, सेम हमने यहाँ पे इज का यूज किया। तो इससे हमें क्या पता चला, ये भी कौन सा टेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वेरी फर्स्ट कॉमन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल
checking this which kind of tense it is, या फिर हमें ऐसे कैसे convert करना है. Any normal sentence जो कि past form में नहीं बोला गया है, future form में नहीं बोला गया है, which is just like sugar is sweet, ठीक है, या फिर food is salty, जहां पे भी हम बेसिकली अपना is, am और are यूज कर रहे हैं, या फिर जहां पे भी हम वर्ब के साथ में s ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वर्ब के साथ में s ऐड कर रहे हैं. वर्ब मैंने बताया था इट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, क्रिया, ठीक है. वर्ब के साथ में हम क्या ऐड कर रहे हैं, s ऐड कर रहे हैं. दिस इज व्हाट, ऑल दिस इज इन आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब आप उनको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड कि हमारा स्टेटमेंट में क्या है, किसी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, इफ देयर इज एनी प्रोवर्ब व्हिच इज बीइंग टोल्ड, एंड नेक्स्ट इज थ्योरीज या प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, या फिर इटर्नल या यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात हो रही है. ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज विल बी काउंटेड इन आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसमें हम हर जगह क्या यूज करेंगे, हम उसमें हर जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. नेक्स्ट सी, फिफ्थ वन इज प्रोफेशनल एक्टिविटीज. अब प्रोफेशनल एक्टिविटीज में कैसे करेंगे, अब देखो बेक ब्रेड, ठीक है. प्रोफेशनल एक्टिविटी क्या है, बेकर का काम है क्या करना, ब्रेड को बेक करना. तो बेक्स आ गया हमारे पास, एस लगा दिया हमने फिर से, एज पर आवर रूल नंबर 1 एस लगाया हमने. अब देखो, अब कॉबलर मेंड्स शूज, कॉबलर का काम क्या है, शू मेंड करना, तो यहाँ पे भी वी हैव एस. दीज आर व्हाट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी. वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो whenever you get a question with regard to this particular topic, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये करना है कि पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको देखना है. आपको देखना है कि वहां पे प्रोफेशनल एक्टिविटी तो नहीं है, इटर्नल ट्रूथ्स तो नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने और क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल्स या थ्योरीज की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है, एंड नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात तो नहीं हो रही है, कोई प्रोवर्ब की बात नहीं हो रही है. अगर वो सब है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, अगर इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन रहेगा तो उसमें से हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज सिंपल प्रेजेंट ओवर देयर. You have to keep in mind the use of simple present tense over there. Okay, so you will check in the options. 4 options में आप मिलेंगे आपको. उन 4 options में से you have to check कि इन चारों options में से out of these 4 options which one tense is simple present. ठीक है, अभी यहाँ पे आपको कुछ अलग options भी आ जाएंगे. For example, had been, baked या फिर have baked, all इस तरह के अजीब अजीब से options भी आ जाएंगे. उसमें भी आपको क्या check करना है, you have to check कि what is the demand of your question. अब नेक्स्ट देखो 6 पार्ट में, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑब्लिक रूटीन ड्यूटीज. अब नॉर्मल एक्टिविटीज और रूटीन ड्यूटीज में भी हम क्या यूज करते हैं, वहां पे भी हम यूज करते हैं अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे कि he goes for a walk in the morning. अब यहाँ पे go का क्या हो गया, goes, तो goes क्या होगा हमारा, goes will be our सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट करेंगे हम, क्योंकि वर्ब है, हम अब हमने आगे क्या लगा दिया, हमने एस का यूज कर लिया, तो दिस विल बी आवर सिंपल प्रेजेंट. अब देखो, नॉर्मल एक्टिविटी डेली रूटीन कोई भी हो सकता है ना, जैसे कि देखो, दे प्ले फुटबॉल इन द आफ्टरनून. तो आफ्टरनून में फुटबॉल खेलना उनका क्या है, उनका रूटीन है, उनकी नॉर्मल एक्टिविटी की, हाँ वो खेलते ही है, तो वो भी किस में काउंट होगा, दैट आल्सो वी विल काउंट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट इज My train gets in at 10 a.m. कब मेरी ट्रेन आती है, gets in at 10 a.m. So this 10 a.m. is what? This 10 a.m. is also the 10 a.m. पे जो ट्रेन आ रही है, that is the regular routine timing of the train. This gets हमने लगा दिया, आ जाती है वो. This is what? This is also our simple present tense. Next comes habitual activities. Mr. Jones always come in time. Mr. Jones हमेशा कब आता है, टाइम पे. So this always will be our सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने यहाँ पे एस लगा दिया, तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो हैबिचुअल एक्टिविटीज को भी हम किसमें काउंट करते हैं, वी काउंट इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एज वेल. आई होप दिस इज क्लियर. हमने अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा. आई मेक brief revision after that. We'll complete the lecture now, then I'll revise it again. Next is प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम कैसे यूज करते हैं, देखो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एक और नाम था जो कि हम बहुत कॉमन उसमें यूज करते हैं, दैट इज, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर so that it get easy for you not to get confused. Yeah, so it is continuous.
हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को और क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई होप इट इज क्लियर। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हम क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना होगा, वर्ब का हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म लिखना होगा, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लिखना होगा, तो हम उसमें कैसे करेंगे? फर्स्ट इज, हम इसमें क्या लगाएंगे? इज, एम, आर, रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 1, राइट इट डाउन एज R1। इसमें हम क्या लगाएंगे? वी विल ऐड इज, एम, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, इसमें हम क्या लगाएंगे? इज, एम, आर के साथ में वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखो, इज वर्ब इज गो, और हम उसके साथ में क्या लगा देंगे? गोइंग, शी इज गोइंग टू दिल्ली। ओके, तो ऐसे हम क्या आ जाएगा? ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट देखो, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ हैव, अगर स्टेटमेंट में हैव है तो उसको हम कैसे लगेंगे? इज, एम, आर प्लस हैव प्लस आईएनजी, दैट विल बी हैविंग, तो इज, एम, आर प्लस हैविंग, ठीक है। नेक्स्ट इज, शी इज हैविंग हर ब्रेकफास्ट, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ बी प्लस एडजेक्टिव, अगर हम बी लगाएंगे या फिर एडजेक्टिव उसके साथ में ऐड कर देंगे, इट विल कम टर्म इनटू बीइंग प्लस एडजेक्टिव। Okay, it will turn into what? It will turn into being plus adjective. And these are the rules. First is कि अगर हमारे पास में present progressive form है verb का, तो it will be is, am, are plus verb की form plus ing. Second rule है हमारे पास कि अगर present progressive form of have है तो it will be is, am, are plus have plus ing, it will be having. Next is present progressive form of be plus adjective is being plus adjective, it will be being plus adjective. Be will convert into be plus ing हो जाएगा ना। The one thing we have to keep in mind in this, the one thing that is common in present continuous tenses, it is ing, use of ing, ठीक है। coming, come का coming हो जाएगा, go का going कन्वर्ट में हो जाएगा, happen का happening कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें verb का फॉर्म जो है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? we will add what? we will add ing to it. okay, we will add what? we will add ing to it. उसके अकॉर्डिंग is, am, are हमारे पास अगर उसमें have है स्टेटमेंट में हमारे पास, तो have को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम उसको having में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर be है और उससे अटैच क्या है हमारा? एडजेक्टिव है, तो उसको हम किस में? being plus that adjective which is mentioned in a particular statement. अब जैसे कि यहाँ पे देखो, let me just clear this present. okay, अब देखो जैसे यहाँ पे हमारा है children are going to school, children are going where? they are going to school, तो हमारा is, am, are प्लस वर्ब के साथ हमने क्या लगाया? ing, ठीक है। is, am, are के साथ हमारा are आया, children थे क्योंकि प्लूरल था, और go के साथ हमारा क्या आ गया? ing. तो this is what? this is our present continuous tense, or we can say it present progressive tense. okay, next is soldier is singing a song, soldier क्या कर रहा है? he is singing a song, तो soldier के साथ क्या आया? it is and this is singing, ठीक है। soldier is singing a song, तो ये singing के साथ हमने ing ऐड अगेन किया, तो we converted it into present continuous tense. अब next देखो, बी पार्ट में हमारे पास है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ हैव प्लस नाउन इज हैविंग प्लस नाउन, ठीक है। अगर हैव और नाउन को हम ऐड करें, ठीक है, हैव और नाउन को, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम? हैविंग और नाउन। इन दिस कंस्ट्रक्शन हैविंग प्लस नाउन इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर टेकिंग, रिसीविंग और एक्सपीरियंसिंग। इसमें हम क्या करेंगे? ये जो हैविंग और नाउन है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या है? शी इज हैविंग अ बाथ, व्हाट शी इज डूइंग? शी इज हैविंग अ बाथ, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने हैव लगा दिया ना, हैविंग हो गया, तो इसको हमने किससे रिप्लेस किया, शी इज टेकिंग अ बाथ। तो यहाँ पे जो हम हैविंग और नाउन है ना, वो हम किसका सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते हैं, या तो हम इधर वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इट विद टेकिंग, या तो फिर हम रिसीविंग के साथ उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर हम उसे एक्सपीरियंसिंग के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जब हम हैविंग प्लस नाउन को यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो इट विल बी या तो टेकिंग प्लस रिसीविंग, या तो टेक है हम कुछ कर रहे हैं, या फिर रिसीव कर रहे हैं, या फिर एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हैविंग प्लस नाउन इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर टेकिंग, रिसीविंग, ऑब्लिक एक्सपीरियंसिंग। जैसे कि शी इज हैविंग अ बाथ, इट इंप्लाइज दैट शी इज टेकिंग अ बाथ। नेक्स्ट इज we are having a lot of hardships. What we are having a lot of hardships. अब देखो having a lot of hardships, अब having को हमने किससे रिप्लेस किया, we are experiencing a lot of hardships. तो ये जो experiencing था, हमने क्या किया, हमने इसको रिप्लेस किया किससे, having से। तो having को हम किसके सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो टेकिंग के लिए, या फिर रिसीविंग के लिए, या फिर एक्सपीरियंसिंग के लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम अपना, नेक्स्ट इज आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पीपल फाइंड इट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड दीज परफेक्ट टेंस के फॉर्म्स। व्हाई इज इट सो? बिकॉज जो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होता है ना किसी भी मेन वर्ब का, इसमें क्या होता है, उसमें हम हैज हैव के साथ पास्ट का पार्टिसिपल यूज करते हैं। अब पास्ट का पार्टिसिपल कैसे यूज करते हैं, दैट आई विल टेल यू इन फर्दर एग्जांपल्स। आई हैव टू कीप इन माइंड, इसमें हम हैज हैव के साथ क्या यूज करते हैं, पास्ट। देखो, the present perfect form of have as a main verb is has, have plus had of be is, ठीक है। अब देखो किसमें हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है किसका, हैव का, मेन वर्ब के साथ, उसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हैज ऑब्लिक हैव प्लस हैड, ठीक है। अगर यही पे, दिस इज नेक्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आई हैवंट नोटिस्ड इट। अब देखो अगर बी आता है हमारा, ठीक है, इफ आई हैव बी विद मी, ठीक है, तो बी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बी गेट कन्वर्टेड इनटू हैव बीन एंड हैज बीन। अगर हमारे पास हैव है, हैव को हम कन्वर्ट करेंगे हैज ऑब्लिक हैव प्लस हैड में, ठीक है। अभी एग्जांपल्स में आई टेल यू हम इसको कैसे यूज करेंगे। अगर वहीं पे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है बी का, ठीक है, इन द स्टेटमेंट इट इज गिवन बी, तो बी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, विल कन्वर्ट इट टू हैव बीन एंड हैज बीन। have been and has been में। प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ कैन, अगर वही हमें कैन को कन्वर्ट करना होगा, अगर हमारे पास कैन वर्ड आएगा तो हम कैन को कन्वर्ट करना होगा, तो इट विल बी हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस एबल टू। किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, हैज बीन, हैव बीन प्लस एबल टू। I hope this is clear. Present perfect form of main verb is has, have plus past participle. Present perfect form of have as a main verb is has, have plus had. और जहां पे हमारे पास be आ जाएगा हम उसको been में convert कर देंगे, has या फिर have been में। Next is of, अगर हमारे पास can आएगा तो can को हम किस में convert करेंगे, has been, have been plus able to में। Okay, I hope this is clear. अभी देखो हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। देखो वेरी फर्स्ट इज, ये फर्स्ट थिंग देखो हम कैसे अप्लाई करेंगे, व्हेन हैव प्लस नाउन मीन्स टू एक्सपीरियंस, टू रिसीव और टू टेक, इट्स प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म इज हैज, हैव प्लस हैड प्लस। जब भी हैव और नाउन हमारे पास होंगे, ठीक है, हैव नाउन के साथ हम हैव ऐड कर चुके होंगे, उसका मतलब होगा कुछ एक्सपीरियंस या फिर कुछ रिसीव या फिर कुछ लेना, ठीक है। टू एक्सपीरियंस, टू रिसीव और टू टेक, इट्स प्रेजेंट फॉर्म, उसका प्रेजेंट फॉर्म हम क्या होगा, इट विल बी
has, have plus had plus now. जैसे I have told you over here, has, have plus had plus now. This is, ठीक है, देखो कैसे, I have had a lot of calls today. अब देखो हम ऐसे ही बोल सकते थे I have received a lot of calls today, ठीक है, I have received. अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रिसीविंग को किससे कन्वर्ट, हमने इसको किसमें चेंज किया, have नाउन को हमने इसको चेंज किया has, have plus had में, that I have had a lot of calls today. तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसको ये have received को सब्स्टिट्यूट किया अपना I have had a lot of calls से. तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने कन्वर्शन टू प्रेजेंट परफेक्ट. दिस इज PP. Okay, don't get confused with BP. It is PP. Next is he has had a lot of opposition. उसका क्या है, he has had a lot of opposition. अब ऐसे ही बोल सकते हैं that he has experienced a lot of opposition. Okay, तो अगर ये भी है that he has experienced a lot of opposition, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, that he has had a lot of opposition. अब नेक्स्ट देखो, I have had rice and fish for lunch. I have had what? I have had rice and fish for lunch. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे I have taken rice and fish for lunch, ठीक है, बट इसमें हमने ये have taken को किसी सब्स्टिट्यूट कर दिया that I have had rice and fish for lunch. तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट में क्या दिया हो, लेट मी क्लियर इट. It's very, just a second, just give me a minute. हाँ, तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट में दिया है, क्या दिया है, have और noun, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि हम वो या तो किसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए या फिर टू टेक, ठीक है, तो हम उसका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे. अभी यहाँ पे आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉल्स को हमने कैसे कन्वर्ट करना है, वी हैव टू हैड, हैज, have plus had oblique plus have and plus now, ठीक है, has oblique have plus had plus now, हमें उसको ये तीन चीजें उसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है. अब I have received a lot of calls, ठीक है, अब यहाँ पे has experienced, he has experienced a lot of opposition, he has had a lot of opposition. अब नेक्स्ट देखो, I have taken rice and fish for lunch. अब इसका अगर हमें कन्वर्ट होगा करना होगा तो it will be I have had rice and fish for lunch. I hope this is clear. अब नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जहां पे हम be लगाएंगे प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, नाउन या एडजेक्टिव के साथ अगर हमारा be लगा हुआ होगा तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी has oblique have plus been plus नाउन या एडजेक्टिव. बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पे रूल नंबर 3 में अपना पढ़ा था, कहाँ पे, कि अगर हमारे पास कभी भी बी आएगा तो बी को हम हैज या हैव बीन में कन्वर्ट कर देंगे. तो वेरी सिंपल कि अगर हमारे पास नाउन या वर्ब का बी आ रहा है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे नाउन या एडजेक्टिव के पास में, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हैज, हैव प्लस बीन नाउन और एडजेक्टिव. एडजेक्टिव बहुत सिंपल है, हैज हैव के साथ हमें बीन लगाना, बहुत सिंपल है, बस इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास नाउन एडजेक्टिव के साथ हमारे पास बी है ना, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो स्टेटमेंट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में है. और ऐसी मिस्टेक्स आपको मिलेंगी अपने ओमिशन वाले क्वेश्चंस पे, तो वहां पे आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, उसको you have to convert it into has, have plus be. अच्छा, ये रूल्स का what is the use of these rules, that also I'll tell you. The very first thing is that you have to keep in mind is कि आपके जो omission वाले questions होंगे, ठीक है, the error वाले questions which we have done, which of the following statement have errors in it. These are the kind of questions जो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा मिले, ठीक है, जहाँ पे भी एरर्स होंगे ना, वहाँ पे आपके टेंसेस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे, जहाँ पे आपको ये सब चीजें चेक करनी है कि बी के साथ आपको कुछ हैज, हैव है, हैड बीन हो जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा पर हैड बीन हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे आई हैव, शी हैज, ही हैज, तो उसमें आपका इनकरेक्शन होगा. All these are the common mistakes जो आपको एग्जाम में होती है, but because you are not unaware, you are unaware of the concepts of tenses, so you make that mistake quite often. अब देखो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि राजी हैज बीन अ टीचर फॉर हाउ मेनी इयर्स, शी हैज बीन अ टीचर फॉर 10 इयर्स, ठीक है, तो हमारा यही से स्टेटमेंट आ गया, राजी हैज बीन अ टीचर फॉर 10 इयर्स. अब यही अगर आपको इनकरेक्शन के लिए दिया एग्जाम में अगर पूछ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि राजी बीन अ टीचर फॉर 10 इयर्स,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजी हैज, सेकंड स्टेटमेंट दिया है हैज बीन अ टीचर, सी में 10 years एंड डी इज नो एरर. तो ऑप्शन विल बी व्हाट? हैज बीन. ठीक है, यहाँ पे हैज बीन आएगा, यहाँ पे राजी बीन नहीं आएगा, इट विल बी राजी हैज बीन. तो वो आपका क्या होगा? दैट वन विल बी दी आंसर. अब देखो अगर वैसे ही आएगा दैट दे हैव ऑलवेज बीन काइंड टू मी, दे हैव ऑलवेज बीन काइंड टू मी. ठीक है, ये स्टेटमेंट आता है आपके पास. फिर से वही इसको एक 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. दिस इज दे हैव, दिस इज ऑलवेज बीन, this is and kind to me C and D is no error. ठीक है, तो at this in this question ना in such questions the answer will be D, no error, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है. they have always been kind to me, this whole statement is correct. तो इसमें हम क्या करेंगे? we will tick on the no error option. ठीक है, so you have to keep in mind, you have to read out the concepts again and again, you have to revise them so that you don't make such mistakes. Because exams are quite scoring. अगर आप इस तरह क्वेश्चंस आप करके आते हो ना, कट ऑफ से you will be above 5 to 6 marks minimum. Next is, अब देखो यूज कहाँ पे करते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट expresses the completion of an action by the time of speaking or writing. क्या एक्सप्रेस करता है? किसी भी एक्शन का कंप्लीशन का बाय द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. कैसे? द हॉलीडेज आर ओवर, द स्कूल हैव रीओपन्ड. दे हैव एक्सप्रेस करते हैं किसी भी एक्शन का कंप्लीशन जब वो बोल रहे हैं ना, जब उस टाइम में हम बोल रहे हैं या फिर हम लिख रहे हैं, उस टाइम पे हम बोल रहे हैं कि ये जो चीज है ना, ये चीज है वो खत्म हो चुकी है. ये जैसे हॉलीडेज है, हम बोल रहे हैं ना हॉलीडेज आर ओवर, so by the time of speaking that action is what? It is completed. So it is signifying what? It is signifying the completion of that action. So present perfect किस लिए use करते हैं हम? To express the completion of an action by the time of speaking or writing. जब तक हम उसे बोले या लिखेंगे that action will be complete. अब देखो next है schools have reopened. Schools have what? They have reopened. अब next है I have written a book on English grammar. मतलब जब मैंने बताया उससे पहले ही व्हाट, मैंने पहले ही एक इंग्लिश ग्रामर पे बुक जो थी वो लिख दी थी. ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर यूजेस ऑफ व्हाट? प्रेजेंट परफेक्ट. अब सेकंड देखो, प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्टिविटी और एक्सपीरियंस व्हिच हैज अकर्ड इन द पास्ट. किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्टिविटी और एक्सपीरियंस जो कब हुआ है? जो पास्ट में हुआ है. ठीक है, पहले पास्ट में हुआ है. किसी भी पास्ट की कोई एक्टिविटी को रेफर करने के लिए या फिर किसी भी क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस को रेफर करने के लिए हम उसको किस लिए यूज करते हैं? हम किसको यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को यूज करते हैं. जैसे कि मिस्टर बैनर्जी हैज बीन टू इंग्लैंड. मिस्टर बैनर्जी कहाँ गए थे? ही हैज बीन टू इंग्लैंड. ठीक है, हैव यू एवर सीन अ रेनबो? क्या तुमने कभी एक रेनबो देखा है? ये पहले उसने देखा होगा तो किसी और से क्वेश्चन कर रहा है. Have you been to this restaurant? He have already been to that restaurant, but still he is asking it as a question. तो किस लिए यूज करते हैं? To refer to an activity or experience जो कब हुआ है? Which has occurred in the past. Next देखते हैं. The present perfect in English does not take an adverb of past time. जैसे कि अभी प्रेजेंट परफेक्ट जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं वो क्या नहीं यूज करता है? पास्ट टाइम एडवर्ब्स को हम नहीं यूज करते हैं. जैसे कि येस्टरडे, लास्ट मंथ. कैसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं? हम नहीं बोलते हैं, वी डोंट से दैट याति हैज फिनिश्ड हर वर्क लास्ट वीक. ठीक है, उसने अपना जो वर्क था हैज फिनिश्ड हर वर्क लास्ट वीक. ऐसे नहीं बोलते हैं. व्हाट वी से? दैट शी हैज फिनिश्ड हर वर्क. ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे है दे हैव गॉट बैक फ्रॉम नेपाल येस्टरडे. वो वापस आए नेपाल से कब? येस्टरडे. हम ऐसे नहीं बोलते दैट दे हैव गॉट बैक फ्रॉम नेपाल. हम कैसे बोलते हैं? जैसे कि लेट्स सी, आई सॉ कुलकर्णी येस्टरडे. याति फिनिश्ड हर होमवर्क. वैसे ऐसे बोलेंगे हैज फिनिश्ड हर होमवर्क. अब देखो यहाँ पे है आई सॉ कुलकर्णी येस्टरडे. हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि I have seen कुलकर्णी yesterday. Okay, this is what it is incorrect. इसलिए हम उसको पास्ट फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, उसको पास्ट टाइम में नहीं यूज करते हैं. इफ यू आर गेटिंग इट, इट इज हैव सीन. I saw कुलकर्णी yesterday. I have seen कुलकर्णी. ठीक है, तो I saw यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम उसको saw में कन्वर्ट कर देंगे rather than have seen. Okay.
अब अगर पास्ट टाइम की मैं बात करनी हो ना, पुरानी कोई बात करनी हो, जो भी चीज लाइक किसी भी पास्ट से रिलेटेड जो भी चीज हो, ठीक है, कि कल वो चीज हुई थी या फिर परसों वो चीज हुई थी, अगर वो पास्ट टाइम की बात हो रही हो ना हमारे पास, तो हम उसमें क्या करते हैं, उस पास्ट टाइम के लिए ना हम सिंपल पास्ट टेंस को प्रेफर करते हैं रादर देन प्रेजेंट परफेक्ट को। ठीक है, तो जब हम सिंपल पास्ट टेंस को प्रेफर करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, तो हम ऐसे लिखते हैं, क्या करते हैं, जैसे याति फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है, हैज फिनिश्ड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, दैट शी फिनिश्ड हर वर्क। अब देखो यहाँ पे दे गॉट बैक फ्रॉम नेपाल, ठीक है, दे गॉट बैक, तो ये हैज हैव का जो हमारा यूज है ना, ये इनकरेक्ट है, वेट लेट मी इरेज इट, या तो ये जो हमारा हैज हैव का यूज है, दिस इज इनकरेक्ट। अब सिंपल पास्ट को हम चूज करेंगे किस लिए, जब पास्ट टाइम इज मेंशन होगा हमारा, जहां पे भी पास्ट टाइम की बात हो रही होगी, जैसे कि लास्ट वीक है, यस्टरडे है, तो वहां पे हम ये हैज हैव इतना यूज करके हम वहां पे सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, वी फाउंड अ ट्रेजर लास्ट वीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, वी हैव फाइंड अ ट्रेजर ऐसे करके आता, बट वो इनकरेक्ट होता। ठीक है, हैव फाउंड की जगह नहीं लिखेंगे, हम हैव फाउंड नहीं लिखेंगे, वी विल यूज सिंपल पास्ट, दैट इज दैट वी फाउंड अ ट्रेजर लास्ट वीक, we have found a treasure last week, that will be an incorrect statement. These are the statements ना, that we have found a treasure last week, ये हम अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, so if please try to correct that as well, because this is only be increasing your proficiency in the particular subject of English grammar. Okay, तो यहाँ पे क्या है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कि अगर हमारे पास पास्ट टाइम होगा ना, तो पास्ट टाइम की बात होगी, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की जगह करेंगे, हम we will use simple past. Okay, we will use simple past. st selling price नहीं है, ये simple past की बात हो रही है। ठीक है, they have got back from नेपाल yesterday, कब वापस आए वो नेपाल से, yesterday। सिंपल पास्ट को हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे पास्ट टाइम की बात हो रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे हैव गॉट बैक है, इट इज इनकरेक्ट, दे गॉट बैक फ्रॉम नेपाल। अब यहाँ पे शी हैज फिनिश्ड, तो इट विल बी शी याति फिनिश्ड हर वर्क लास्ट वीक। I saw Kulkarni yesterday, ऐसे नहीं लिखेंगे that I have seen Kulkarni yesterday. Okay, I hope this is clear to everyone. Next is present perfect progressive. Next tense है हमारे पास present perfect progressive. A present perfect progressive of a verb is, क्या है present perfect progressive किसी भी verb का, it is has been, have been plus present participle. अभी मैंने आपको पहले बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अनदर नेम व्हाट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज व्हाट, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, many of you must be thinking what present perfect progressive is. So present perfect progressive is same as present perfect continuous, it is the same tense. ओके जो हम प्रेजेंट अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर दैट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या करते हैं हम, हैज हैव बीन के साथ क्या लगाते हैं, प्रेजेंट का पार्टिसिपल। देखो हम कैसे लगाते हैं इसको, लेट्स सी, यूज कहां पे करते हैं। The present perfect progressive indicates that an action began in past, की जो एक्शन था ना, कब began हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, और फिर वो कंटिन्यू हो रहा है कब तक, टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। जब तक हम बोल रहे हैं या फिर जब तक हम लिख रहे हैं, वो तब तक कंटिन्यू हो रहा है। इससे पहले वाले में हमारे पास क्या था कि वो कंटिन्यू नहीं हो रहा था, इट इज कंप्लीटेड बाय द टाइम वी आर स्पीकिंग और राइटिंग अबाउट इट। तब तक वो एक्शन क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में वो कंप्लीट हो चुका था। बट इन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, दैट एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, इट इज नॉट, मतलब वो क्या है, वो कंप्लीट हुआ नहीं है, वो अभी तक चल रहा है, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। बट इन द अर्लियर वन, जब तक हम उसकी बात करते हैं, बाय द टाइम ऑफ वी स्पीक और राइट अबाउट इट, द एक्शन इज कंप्लीटेड। Just give me a moment, I'll just erase all the drawings. I hope this is clear.
A present perfect progressive indicates that an action began in past, still going on, that is continuing up to the time of speaking or writing. वो क्या कर रहा है? It is continuing up to the time of speaking or writing. For example, the baby has been crying. ठीक है, वो पहले रोना शुरू किया था, वो अब तक रो ही रहा है. ठीक है, this is the baby. ये baby था, जो भी है, just don't imagine this as a baby. Okay, तो ये baby था, it has been crying from, तब से रो रहा था, 2 घंटे से रो ही रहा है. ठीक है, तो व्हाट इज दिस? वो एक्शन स्टार्ट कब हुआ था? पास्ट में स्टार्ट हुआ था, और वो अब तक क्या है? इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. द बेबी इज स्टिल क्राइंग. नेक्स्ट इज व्हाट हैव यू बीन डूइंग? तुम इतनी देर से कर क्या रहे थे? लाइक कब से वो पूछ रहा है कि पास्ट से अब तक तुम क्या कर रहे थे. तो एक्शन कंटिन्यू कब हुआ हमारा? पास्ट में, एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन. ओके, नेक्स्ट इज अब it can be used with time phrase like these. For example, कौन से time phrases के साथ हम इसको use कर सकते हैं? For, since, long, how long, all the time, all day, all week. ठीक है, all these are what? यहाँ पे हम किसको use कर सकते हैं? अपने present perfect progressive को. For example, Lata has been talking all the time. Lata has been talking. Has been, टॉक का हमने क्या बनाया? आईएनजी के साथ ऐड कर दिया. यहाँ पे हमारे रूल में क्या था? हैज या हैव बीन के साथ पास्ट पार्टिसिपल. तो वही हमने किया, हैज हैव बीन के साथ टॉकिंग लगाया. ठीक है, तो हमने क्या किया? सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो यहाँ पे हमने क्या किया? वही क्या, हैज हैव बीन के साथ टॉकिंग लगाया. ठीक है, देखो ये लता बात जा रही, कब से बात कर रही है? बहुत देर से कर रही है बात. उसने पास्ट में करना स्टार्ट किया था, एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. Next is we have been playing chess all evening. We have been playing what? We have been playing chess all evening. What we have doing? We have been playing chess. Next is people have been waiting for a long time. लोग क्या थे? बहुत देर से वेट कर रहे थे. People have been waiting for a very long time. अब नेक्स्ट देखो, इन क्वेश्चंस इन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जहां पे भी हम सिंस व्हेन यूज करते हैं, किसकी जगह पे? व्हेन की जगह पे. अब देखो, जहां पे भी क्वेश्चन आता है ना, जहां पे भी हमारे पास व्हेन का क्वेश्चन आएगा, व्हेन डिड दैट हैपन, अगर वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की फॉर्म में है क्वेश्चन, जैसे कि द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग, तो हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे व्हेन हैज द चाइल्ड बीन मिसिंग, वी विल आस्क सिंस व्हेन. ठीक है, तो व्हेन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? when की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? we will use since when. okay, so instead of when we will use what? We will use since when in our present perfect progressive. तो since when has the child been missing, कब से जो बच्चा था वो गुम हुआ है. ठीक है, मिसिंग है वो कब से. Since when have you noticed the symptoms of this disease, कब तुमने इस डिसीज के सिम्टम्स जो थे नोटिस किए? तो कब नोटिस किए थे? वो डिसीज आज तक है, पर तुमने कब नोटिस किए थे? हम क्या नहीं बोलते? we don't say when have you been writing this novel. तो what we ask? We ask since when have you been writing this novel, कब से तुम ये नॉवल लिख रहे हो. ओके, तो यहाँ पे हम when को किससे रिप्लेस करेंगे? we will always replace when with since when. I hope this is clear. I'll just give you again a quick revision of what we did in today's lecture. We have talked about what? We have talked about tenses, and today we did basically present tense. हमने present tense के बारे में पढ़ा. ठीक है, टेंस पढ़ा हमने कि वो क्या है? इंडिकेटर है फॉर्म ऑफ वर्ब का, कि वो चीज कब हुई थी, पास्ट में हुई है, प्रेजेंट में हुई है, या फिर फ्यूचर में हुई है. प्रेजेंट टेंस हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताता है, एक्शंस जो कि अभी हो रहे हैं उनके बारे में बताता है. टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस में हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एंड present perfect progressive. Progressive tense is again we also called it present continuous and present perfect continuous. Simple present में हमारे जो simple rules थे उसमें क्या था? very first thing is we had SES. Just give me a minute. I need my pen. Yeah. Very first thing is we had S, ES. Apart from that, we have
हैव एंड नाउन अगर दिया होगा तो वो हैज हैव प्लस नाउन में हम कन्वर्ट कर देंगे। बी को अगर हमारे पास बी दिया होगा स्टेटमेंट में तो उसको हम इज एम आर प्लस नाउन में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। उसमें हमारे पास क्या है, इटर्नल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात करते हैं हम, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स की बात करते हैं, नेचुरल एंड इनहेरेंट क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज में हम यूज करते हैं उसको, नॉर्मल एक्टिविटीज और रूटीन ड्यूटीज में यूज करते हैं, एंड द लास्ट इज हैबिचुअल एक्टिविटीज में यूज करते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब और आईएनजी के साथ इज एम आर यूज करेंगे। अगर हमारे पास स्टेटमेंट में हैव है तो इज एम आर के साथ हैव प्लस आईएनजी यूज करेंगे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बी और एडजेक्टिव के साथ बीइंग प्लस एडजेक्टिव यूज करेंगे। अब नेक्स्ट इज चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, soldier is singing a song, so all these are our examples of present progressive। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है, अगर have है हमारे पास तो have को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, आई टोल्ड यू having प्लस नाउन में। किस लिए हम इसको किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम इसको टेकिंग, रिसीविंग, एक्सपीरियंसिंग इन सबसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको having को, having can be used in place of all these। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या किया, हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के बारे में हमने पढ़ा। अब पास्ट पार्ट कैसे हम यूज करेंगे, जैसे कि देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल को हम कैसे यूज करेंगे कि हैज हैव प्लस हैड ऑफ बी, ठीक है, हैड यूज करेंगे हम। अगर बी है हमारे पास तो उसको हम हैज बीन एंड हैव बीन में कन्वर्ट करेंगे। कैन है तो हैज हैव बीन प्लस एबल टू में कन्वर्ट करेंगे। When have plus noun है जब हमारे पास, उसका मतलब होता है एक्सपीरियंस, रिसीव या किसी से कुछ लेना है, फिर टू टेक, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वी विल कन्वर्ट इनटू हैज हैव प्लस हैड प्लस नाउन। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे सेकंड इसमें देखो एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में ही हैज हैड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, तो उसने एक्सपीरियंस किया दैट ही हैज एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया हैज हैड में, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में, अगर बी है तो बी को हम हैज एंड हैव बीन में कन्वर्ट कर देंगे। किस लिए यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट को, टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। जब हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाइल स्पीकिंग वी आर टेलिंग दैट द एक्शन इज कंप्लीट, जैसे कि हॉलीडेज आर ओवर, ठीक है, इसमें हमारा एक्शन क्या है, वो कंप्लीट हो चुका है, बट वी आर स्पीकिंग ऑफ इट करंटली। Present perfect is used to refer to any activity or experience which has occurred in the past। कोई भी एक्टिविटी या फिर एक्सपीरियंस जो पास्ट में हुआ है उसको रेफर करने के लिए भी हम यूज करते हैं। Present perfect in English does not take an adverb of past time। पास्ट टाइम के एडवर्ब में हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज नहीं करते हैं, हम वहां पे सिंपल पास्ट को यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा है that they have got back from Nepal yesterday। In this point we have written that they have got back from Nepal yesterday। तो यहाँ पे हम have got back from Nepal, we know that they have got back from Nepal, तो have got it is incorrect। What we will say that they got back from Nepal yesterday, ठीक है। जैसे यहाँ पे we found a treasure last week, in this we found a treasure last week, we don't say it that we have found a treasure last week, we say that it is we found a treasure last week। simple past use करेंगे। last is present perfect progressive। present perfect progressive में हम क्या यूज करेंगे, has have been plus present participle। देखो कैसे यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट अभी तक चल रहा है, ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ था अभी तक चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी हम करंटली बात कर रहे हैं पर वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ऑपोजिट है उसका, पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग बाय द टाइम वी आर स्पीकिंग ऑफ इट। जैसे कि बेबी हैज बीन क्राइंग, अभी तक रो रहा है, बहुत देर पहले रोना शुरू किया था उसने, पास्ट में शुरू किया था बट अभी तक रोए जा रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट आर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट इज, इसको हम फ्रेजेस के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि for, since, how long, all the time, जैसे कि we have been playing chess all evening, ठीक है। फ्रेजेस के लिए भी, टाइम फ्रेजेस के लिए भी यूज करते हैं हम इसको, जहाँ पे
टाइम के मतलब एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम की बात हो रही है. पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से दे हैव बीन वेटिंग, तब से वेट कर रहे हैं अब तक. ओके. अब देखो जब भी हमारे पास व्हेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसको सिंस व्हेन में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में. Okay, I hope this lecture is all clear to you. We will solve the questions in the coming time when the whole tense chapter will be over. After that, we will be taking up the questions of this and assignment of this, and we will be solving the remaining paper as well as questions. Okay, I hope this is clear to everyone. And if you guys have any doubt, please let me know. And that's all for today. I'll see you tomorrow with the past tense. Revise it because only revision is going to help in your examination. That's all for today. Have a good day ahead.